जय श्री राम सभी भाइयों को। आज हम क्लास 9 चैप्टर 9 सर्कल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। सर्कल, एनी क्लोज शेप विद ऑल पॉइंट्स कनेक्टेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर्म्स अ सर्कल। कोई भी क्लोज शेप विद जिसके सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस हो फ्रॉम द सेंटर, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो फ्रॉम द सेंटर, दैट्स फॉर्म अ सर्कल। रेडियस, the distance between the center of the circle and any point on its edge is called the radius. Distance of center at and any point between the on the edge of circle is called the radius. Chord, the line segment with the within the circle joining any two points of the circle is called chord. In the figure you seen that the AB is the line segment that joining two points A and B, that is called chord. Diameter of the circle. A chord passing through the center of a circle is called the diameter. In this figure you seen that the CD line segment passing through the center of circle, that's called diameter. It is the longest chord of circle. Diameter equals to twice of radius. Next, segment of the circle. A circular segment is the region of a circle which is cut off from the rest of circle by a secant or a chord. When circle are divided into two parts by the line segment called segments, smaller part called minor segment and larger part called major segment. Arc, the point of a circle between two points is called an arc. When the two points on the edge of circle is taken and joining, that is larger part called major arc, smaller part called minor arc. Sector of circle. A sector is the portion of a circle enclosed by two radii and an arc where the smaller area is known as the minor sector and larger begin the major sector. When circle is enclosed in the two radii and an arc, that's one is arc and that's are two radii. Okay, so larger portion called major sector and smaller portion called minor sector. Circumference of circle, it is the perimeter of circle. Interior and exterior of circle. Here you seen that O and B are interior in this circle, are present in the points present in the inside the circle, and C outside the circle, that's outside means exterior, inside means interior, and A that's present on the edge of circle known as on the circle. Next, angle subtended by a chord at any point. If in a circle CD is the chord is making angle CPD at any point of the circle, then this is the angle subtended by chord CD at point P. मान लो ये chord है CD जिसने एक एंगल बनाया, दैट्स कॉल्ड P, पॉइंट P पे, वो अगर वो इक्वल है, इतना ही है। नाउ थ्योरम स्टार्ट करते हैं। अब हम पहली थ्योरम 9.1, इक्वल chords ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब देखिए, अगर हमारी ये कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इक्वल हैं तो ये कह रहे हैं कि ये भी एंगल प्रूव करो, ये भी एंगल इक्वल होंगे। तो प्रूफ देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ओ ए रेडियस, ओ बी एंड ओ डी रेडियस ऑफ सर्कल, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हमें गिवन है क्योंकि ये कॉर्ड्स हैं तो ये इक्वल हैं। तो इसका प्रूफ करते हैं। देखिए, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस एस एस, तो अब हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी। ठीक है। नेक्स्ट, थ्योरम 9.2, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स of a circle at the center are equal, then the chords are equal. The above theorem is the converse of theorem 9.1. If you take angle AOB and angle COD, then AB equals to CD by CPCT. देखिए, अब अगर इसमें हम जो ये AB और CD लिए हैं, इसकी जगह पे हमें बोलते हैं कि एंगल इक्वल है, विच इज़ एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD.
तो अब हम ए बी और बाई सी पी सी डी के थ्रू क्या प्रूफ करेंगे कि ये कॉर्ड्स भी इक्वल है। नेक्स्ट थ्योरम 10.3 द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर बनाया ओ एम ऑन द सेगमेंट ए बी, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है दो पार्ट्स में, ठीक है। थ्योरम 9.4 द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर द सर्कल परपेंडिकुलर ऑन ए बी जॉइन ओ ए एंड ओ बी। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो 9.4 का 9.3 इज़ द कन्वर्स ऑफ 9.4। देखिए इसमें हमें ये बोला है कि अगर जो लाइन सेगमेंट कॉर्ड है वो पहले से ही दो हिस्सों में बटी हुई है और परपेंडिकुलर हमें उसे शो करना है उस लाइन को, तो ओ एम इक्वल्स टू एंड ट्रायंगल ओ बी एम, ओ ए इक्वल्स टू रेड आई ऑफ सर्कल, ए एम इक्वल्स टू रेड आई, और ये भी ओ एम इक्वल्स टू ओ एम कॉमन, ट्रायंगल ओ ए इक्वल्स टू ओ ए एम इक्वल्स टू ट्रायंगल ओ ए एम बी। तो जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं ट्रायंगल एंगल ओ ए एम इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी विच इज़ इक्वल्स टू 90 बाई सी पी सी टी। 90 डिग्री है उस 9.3 में हमें ये बोला गया है कि ये 90 डिग्री का एंगल है पहले से ही, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों मतलब ये ए बी ए एम एंड बी एम इक्वल है, इसमें हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट थ्योरम है 9.5 देयर इज एन वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री गिवन नॉन लीनियर कोलिनियर पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर हमें दिए हुए हैं 3, उनसे हमारा एक ही सर्कल पास होगा। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है तो आप इसे ऐसे ही नॉर्मली रीड कर लीजिए। 9.6 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका हमें ये दिया हुआ है कि भाई जो हमारे नॉर्मली जो कॉर्ड्स होता है वो सेंटर से अगर इक्वल है तो उनका डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल ही होगा। 9.7 क्या कहता है? 9.7 थ्योरम कहती है कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। 9.7 कहती है कि अगर ये डिस्टेंस इक्वल है और ये डिस्टेंस इक्वल है तो इन दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी, लाइक एक्स वाई एंड पी क्यू इक्वल। अगर ए ओ और ओ सी इक्वल है तो एक्स वाई एंड पी क्यू भी इक्वल होंगे। और 9.6 में हमें ये बोला गया है कि अगर एक्स वाई पी क्यू इक्वल हैं तो ए ओ और ओ सी इक्वल होंगे। द एंगल्स नेक्स्ट ये भी हमारी 9.7 ही थ्योरम है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आइए हम देखते हैं उसको। एंगल जो अगर आर्क से सबटेंड हुआ है एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर आर्क से कोई भी एंगल बनता है सेंटर पे वो डबल होगा एंगल दैट फॉर्म्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल अगर कोई भी पॉइंट लगाते हैं हम, वो भी एंगल बनता है, तो वो जो सेंटर पे एंगल बना है वो उस रिमेनिंग पार्ट के डबल एंगल फॉर्म होगा। तो आप समझ सकते हैं। इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल if two chords of a circle are equal then their corresponding arc are also equal. Conversely if two arcs are equal then their corresponding chords are equal. इसमें हमें ये बोला गया है कि अगर ये chords इक्वल हैं तो हमारे ये आर्क भी इक्वल होंगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर ये आर्क इक्वल बोले गए हैं तो ये chords भी इक्वल होंगे। इतना ही है इसमें समझने लायक, कुछ नहीं है ज़्यादा। 9.8 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब एंगल ये बनाए गए हैं ये जैसे कि, तो ये डी और सी एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों एक सेम सेगमेंट में, लाइक दिस देख सकते हैं आप लोग, ये ऐसे कुछ सेगमेंट फॉर्म हो रहा है नॉर्मली। तो ये इतना ही। धन्यवाद। आशा है आप सभी को ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।